جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اس کے بعد آفٹر شاکس آ رہے ہیں. 2 پولیس والوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق. 2 نوجوان پولیس والے, ایک نے تو اپنی یونیفارم ہی جلا دی اور وہ بہت پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی حکومت پنجاب پہ تنقید کر رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ تنقید کر رہے ہیں آئی جی پنجاب پر, کیونکہ انہیں اپنے سب سے بڑے آفیسر سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ان کی عزت کی بحالی میں کوئی کسر چھوڑیں گے. بہرحال آئی جی پنجاب جو ہے وہ سب جانتے ہیں کتنے پانی میں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا, وہ بہت مجبور ہیں. ان کے بارے میں تو لوگ بہت عجیب عجیب سے میمز بھی بنا رہے ہیں, اور کچھ تو بالکل مجھے ٹھیک بھی لگ رہے ہیں, واقعاتی حقائق کے مطابق لگ رہے ہیں. اب یہ معاملے کا بنے گا کیا؟ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر جو سینسیبل لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ کیا جانا چاہیے کہ کس کس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. جس نے جہاں جہاں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا وہاں اس کو فکس کرنا چاہیے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے, تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا, میں آپ کے سامنے موجود ہوں, میرے گھر پہ 3 دفعہ ریڈ ہوا ہے. لگ بھگ 30 لاکھ سے زائد کا سامان پولیس والے 10 مئی کی رات کو جب میرے گھر انہوں نے ریڈ کیا. ایون میری ایک بڑی یادگار 1970s کی میرے دادا نے, ان کی گھڑی ایک موجود تھی, وہ بھی اٹھا کر لے گئے وہ. اور یعنی وہ مجھے بہت پسند تھی, وہ اتنی قیمتی تو نہیں تھی, لیکن وہ مجھے جن چیزوں کے جانے کا مجھے افسوس ہے ان میں صرف وہ ایک گھڑی ہے. باقی ساری چیزیں میں دوبارہ خرید سکتا ہوں, وہ گھڑی میں دوبارہ نہیں خرید سکتا. وہ 50 سال سے بھی پرانی گھڑی تھی, تو بہت پرانی, اور میرے دادا ابو کے ٹائم کی گھڑی تھی, وہ تب سے ہم نے سنبھالی ہوئی تھی اور بالکل نئی کی طرح تھی. مجھے بڑی پسند تھی, میں نے ایک آدھے ویلاگ میں پہنی ہے, میں ڈھونڈ بھی رہا تھا اس دن میں نے کہاں پہ وہ پہنی ہے. تو بہرحال میں ویسے پہنتا نہیں ہوں, میرے سے وہ گھڑی پہننا یا اس طرح وہ مجھے عادت بھی نہیں ہے, لیکن وہ مجھے پسند تھی, میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا. میرے والد صاحب نے مجھے دی تھی. لیکن وہ باقی چیزیں بھی لے گئے اٹھا کے. 30 لاکھ سے زائد کا تو سامان ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا, پھر میں ہی غائب ہو گیا تو میرے گھر والوں کو سامان کی تو فکر نہیں رہی, نہ وہ اس کے پیچھے جا سکے. تو میں کیا ایسے انصاف لوں گا؟ میں نے ہمیشہ قانون کا رستہ اپنایا ہے, ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے, میں نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. حالانکہ بغیر وارنٹ کے پولیس والے میرے گھروں میں گھسے ہیں, بار بار گھسے ہیں, اور ہم نے اس کے باوجود ان کی یونیفارم کا احترام کیا ہے. حالانکہ انہوں نے بدتمیزی بھی کی, اس کے باوجود ہم نے ان کی یونیفارم کا احترام کیا اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. تو یہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے, قانون کو کسی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اگر اس طرح سے سارے اپنا اپنا فیصلہ کریں گے تو میں تو دیکھتا ہوں بہت طاقتور لوگ بھی موجود ہیں پاکستان میں. ہر قبیلہ اٹھے گا, اٹھ کے جا کر وہ اٹیک کر کے اپنا بدلہ لے لے گا. یعنی میں 100-200 آدمی اکٹھا کروں اور جو پولیس میرے ساتھ زیادتی کرے میں جا کے ان کے ساتھ کر کے آ جاؤں, تو یہ تو بہت ہی غیر مناسب ہوگا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اور ہے ناظرین, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور سٹیٹس کو کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کو غریب رکھو, لوگوں کو مجبور رکھو, پھر ان کی مجبوریوں کو خریدو. طریقہ کار ہی یہ ہے, لوگوں کو پریشان کرو, ان کو مجبور کرو, پولیس کے معاملات میں پھنساؤ, پھر نکالو اور احسان چڑھاؤ. کسی اور معاملے میں پھنساؤ پٹوار خانے کے, پھر ان کو وہاں سے نکالو اور احسان چڑھاؤ. ان کو غریب کرو, پھر ان کو امداد کے نام کے اوپر چیک دو یا آٹا دو یا کوئی اور چیز دو, اس پہ میاں صاحب کا منہ فٹ کرو یا کسی اور کا, احسان چڑھاؤ. اب انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھو, تاکہ غریب کو جب پیسہ ملے تو پتہ چلے کہ بے نظیر کا پیسہ آ رہا ہے, احسان چڑھاؤ. تو اس طرح جو بھی چیز کرتا ہے اسٹیٹس کو, وہ ہمیشہ سرکاری پیسے کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرتا ہے. یہی کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا. یہ اب عوامی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ہدایت کی روشنی میں صوبائی دارالحکومت پشاور میں وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے سوشل ویلفیئر مشال یوسف زئی نے عید پیکج کے تحت مستحقین میں فی فرد 10,000 روپے کے چیک تقسیم کیے. یاد ہے آپ کو؟ 2,000 روپے, پورے 2,000 روپے. سٹیٹس کو کی آواز یاد ہے آپ کو؟ یہاں سے 10,000 کی آواز آ رہی ہے. یہ تو طریقہ کار نہیں ہے, اس کے خلاف تو عمران خان نے پالیٹکس شروع کی تھی, اور اگر یہی کرنا ہے تو اس کو بے شرمی کہا جا سکتا ہے, اس کو سٹیٹس کو کہا جا سکتا ہے. ٹک ٹاک بنانے کا یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑا رجحان اور بہت شوق پیدا ہو رہا ہے. لیڈر ان کا جیل میں ہے اور خود اپنی تشہیر کے لیے پیچھے یہ شہریار افریدی صاحب کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑا پوسٹر بھی لگا ہوا ہے, جس پہ کہیں پہ بھی آپ کو علی امین گنڈا پور اور جو وزیر صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور کی فوٹو بھی نظر نہیں آ رہی. یعنی عمران خان کی فوٹو لگانے کا بھی انہوں نے تردد نہیں کیا. اور ویسے اگر عمران خان کی بھی لگاتے تو میں مخالفت ہی کرتا اس کی, کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ عوام کو جا رہا ہے اور عوام کو ہی جانا چاہیے, اور عوام کے اوپر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے.
और अवाम का चेहरा दिखाना इंतहाई गलत और मायूब बात है। यहां पे ऑफिशियली खुद लिखा कि मुस्तहकीन में फी फर्द 10,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए, मुस्तहकीन में। अब मुस्तहकीन की शक्लें तो नहीं ना दिखाते, अब वो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके चेहरे तो नहीं दिखाते ना। बहुत सारे लोग हैं वो बांटते हैं लोगों में, वो चेहरा नहीं दिखाते लोगों के। ये तो आपका अगर ज़ाती पैसा है तो आप चेहरे दिखाएं, जो मर्जी करें, लोगों के पास ऑप्शन है, आपके पास भी है। लेकिन अगर सरकारी पैसा पैसा ही लोगों का अपना है तो फिर आप ये नहीं कर सकते। एक चूरन बेचने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वो चूरन मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आप एक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की, कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे का एक ख़दशा मौजूद है। और यानी जो चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने कहीं कि जो पाकिस्तान में ख़राब होने की तवक्को है जिनमें, उसमें यह है कि ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है पाकिस्तान में, जबकि तालीम और सेहत की खिदमात तक फराहमी में कमी हुई है। तालीम की फराहमी में और सेहत की फराहमी में पाकिस्तान में कमी हुई है इमरान खान साहब का दौर गुजरने के बाद। ये वर्ल्ड बैंक जो है ये कंफर्म कर रहा है। बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, जबकि सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआलजे तक रसाई ताखीर का सबब बन सकती है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, किस सूबे में क्या सूरत हाल है और कहाँ पे कितनी ग़िज़ाई किल्लत होगी, कहाँ पे तालीम की क्या सूरत हाल हो रही है, गुर्बत, महंगाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन आप देखेंगे ये आपको चूरन बेचते कैसे हैं। पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये खबर आप ज़रा देखिए, ये दो खबरें हैं, दोनों ARY पे छपी हैं और दोनों जो है वो एक दो दिन के वक्फे से छपी हैं। जो पहली खबर है जो पहले आई वो ये कह रही है कि नेपरा ने बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है, यानी लगभग 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हो गई। और दूसरी खबर जो आज आई है वो क्या कह रही है कि ईद उल फितर के मौका पर महंगाई के सताए अवाम के लिए एक खुशखबरी सुना दी गई। खुशखबरी क्या है कि अप्रैल का जो बिजली का बिल है वो 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कम कर दिया गया। यानी बिजली की कीमत पहले बढ़ाओ 5 रुपए और फिर उसमें से 3 रुपए 82 पैसे कम कर दो, वो भी 1 महीने के लिए, और खबर छुपवाओ डंडा लगवा के कि आपने छापना यह है कि ये खुशखबरी है और आवाम को खुशखबरी सुनाई जा रही है। यानी लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। तो लोगों को जब भी आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, हम फैक्ट्स को यहाँ पे रखेंगे, हम बताएंगे कि एक्चुअली हकायक हैं क्या। देखें, असल में जब ये महंगाई ख़त्म करने का दावा करेंगे ना, तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो 11% से 13% के बीच में रही। 10%, 11%, 12%, 13% मैक्सिमम गई है। जब हुकूमत खत्म हुई तो गालिबन 11 या 12% उनकी महंगाई थी। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो यह महंगाई 40 से 45% के बीच में गई है। इस वक्त भी महंगाई 30%, 27 से 30% के बीच में है। कभी 30% तक पहुंचती है, कभी कम होकर 27% तक पहुंच जाती है। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी उससे दुगनी से ज्यादा इस वक्त भी महंगाई मौजूद है। अब ये करेंगे क्या? यानी 40% पर जाके जब वापस 30% पर लाते हैं तो ये कहते हैं जी महंगाई कम हो गई। बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की कौम को। बिजली का यूनिट 10 रुपए बढ़ाने के बाद जब 2 रुपए सस्ता करते हैं तो कहते हैं जी बहुत मुबारक हो, हमने कम कर दिया। पेट्रोल 150 रुपया लीटर बढ़ाने के बाद जब 15 रुपए कम करेंगे तो कहेंगे जी हमने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, सस्ता कर दिया। तो इसके लिए हम एक पैटर्न सेट कर देते हैं जिसके ऊपर हम समझेंगे कि महंगाई कम हो गई है। क्योंकि जब ये लोग इक्तदार में आए थे सन 2022 में, 10 अप्रैल को इनकी हुकूमत बनी थी, तो इन्होंने कुछ वादे किए थे। इनका ये कहना था कि ये चीज़ों को बहुत सस्ता कर देंगे। हम ये कहते हैं वो उतना सस्ता ना भी करें। यानी ये कह रहे थे कि डॉलर 100 का हो जाएगा, पेट्रोल 70 रुपए का हो जाएगा, आटा जो है वो 30 रुपए का हो जाएगा। बहुत सारी इन्होंने झूठ बोले थे। इनके झूठ छोड़ दें। वो जिन कीमतों पे इमरान खान छोड़ कर गया था, अगर उससे ऊपर होगा तो महंगा होगा, उससे नीचे होगा तो सस्ता होगा, ये पैरामीटर तो ठीक है ना। ये तो इंसाफ वाली बात है ना। क्योंकि इमरान खान के दौर में बकौल उन मीडिया वालों के जो उस वक्त माइक लेके लोगों के मुंह के अंदर डाल देते थे कि जनाब बताएं महंगाई हुई, आया मजा तब्दीली का, उनके बकौल उस दौर में जो बहुत ज्यादा महंगाई थी जिसको कम करने के लिए पीडीएम की ये हुकूमत बनी है। अब देखना यह है कि उस महंगाई को इन्होंने कितना कम किया। तो पैरामीटर वही सेट कर लेते हैं। इमरान खान के दौर में जो आटा था वो 1100 रुपए की थैली थी 20 किलो वाली। ये थैली 3000 तक पहुंची और वापस अगर 2500 पे ला के ये कहेंगे जी हमने 500 रुपए आटा सस्ता कर दिया, तो आपने नहीं मानना। आपने कहना जी 1100 की थी, आप हमें 1099 रुपए की कर दें तो हम समझेंगे कि आपने सस्ता किया। 1100 से ऊपर होगा तो उसको महंगाई समझा जाए।
क्योंकि ये तो सस्ता करने आए थे ना। पेट्रोल की कीमत 145 रुपए से नीचे जाए तो आप समझे सस्ता हो गया। बिजली के यूनिट के ऊपर और गैस के यूनिट के ऊपर मैं अलग एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है। उसकी सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा कि वहां आपको कैसे धोखा दिया जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। तो पैरामीटर वही रखना है कि अगर डॉलर 180 रुपए से नीचे आ जाए तो फिर आपने समझना है कि इमरान खान के दौर की निस्बत इन्होंने कुछ बेहतर कर दिया। ये नहीं होगा कि अगर 250 रुपए पे आ गया जी बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, नहीं, आपको 180 पे दिया था, आपने 100 का करना था। 100 का ना करें, 180 का ही कर दें वापस। ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मिफ्ता इस्माइल का स्टेटमेंट आप देखिए, आपको सब समझ आ जाएगी कि ये अपने मुंह से क्या मान रहे हैं। IMF से मुआहदा करना नागुज़ीर है, हुकूमत के पास सलाहियत है, ना ही वजीर खजाना अपनी पॉलिसी मुतारफ करवा सकेंगे। वजह यह है कि जो मंशूर दिया था वो PMLN ने दिया था, हुकूमत उनकी बनी है, लेकिन वजीर खजाना जिसने 80% मंशूर के ऊपर अमल करना होता है वो PMLN का है ही नहीं। बल्कि वो कहां से आया? PMLN उसको इलेक्शन वाले दिन तक जानती नहीं थी। एक नया तजुर्बा किया गया है। अब ये जो तजुर्बा है इसकी अपनी कोई अलग पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी ये बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब छुपाने का रुझान आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। देखते हैं कि इस तजुर्बे के साथ क्या बनेगा। बहरहाल अब एक पहले मेट्रो बनाई थी इन्होंने, एक ट्रेन बनाई थी ऑरेंज ट्रेन लाहौर में। अब कह रहे हैं जी ब्लू ट्रेन भी हम लेकर आएंगे और पर्पल ट्रेन भी लेकर आएंगे। कलर्स का बहुत शौक है ना मरियम नवाज साहबा को या टिकटॉक गवर्नमेंट को। यानी कोशिश जो है वो मैचिंग वाली कोशिश करवाने के लिए और टायर लगवाने के लिए 3.25 करोड़ रुपए खर्च दिए थे उन्होंने, और अपने सूट के ऊपर 500 रुपए। वो तो $500 के मुझे लगते हैं कपड़े, लेकिन चले 500 रुपए का सूट, मुझे तो समझ नहीं आई कहां से ये 500 रुपए का सूट मिलता है। यानी अपने पैसे खर्चने हैं तो 500 रुपए का सूट लेना है, जब अवाम के पैसे खर्चने तो 3.25 करोड़ रुपए के टायर भी डालने हैं और मैचिंग वाली कोशिश भी करवानी है। ये तो इनके अल्ले तल्ले हैं, और फिर टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं। बहरहाल ये जो कलर पसंद है उनके अंदर भी अब जो ऑरेंज ट्रेन है वो अब पर्पल भी आएगी और साथ ही साथ ब्लू कलर की भी आएगी, तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। मैंने आपको बताया था ना कि ये धोखा देते हैं। इन्होंने, याद होगा आपको, जब सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग करने गए थे तो ये 1 अरब से बढ़ते बढ़ते पता नहीं 12-15 अरब तक पहुंच गए थे। इतने अरब डॉलर हमें मिल गए, दुनिया ने दे दिए। तो बाद में रिपोर्ट आई थी कि 5% पैसे मिले। अब थोड़े दिन पहले सऊदी अरब के दौरे पे शुरू किया था 1 अरब डॉलर, फिर 2 अरब डॉलर, फिर 3 अरब डॉलर, फिर 5 अरब डॉलर, फिर 8 अरब डॉलर। अब जनाब वो फिगर 21 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है। क्यों? झूठ बोलना है, 1 अरब का भी बोलना है तो 21 अरब का भी बोलना है। तो 21 अरब का 25 अरब का क्यों ना बोलें? तो थोड़े दिनों में ये अमाउंट और भी बढ़ जाएगी। ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे ना। इससे पहले ये कोई सरमायाकारियां ऐसे ला सके पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं, बाहर से लेकर आएंगे। और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक खबर जाते जाते मैं आपको दूं कि पंजाब के ऑफिसर्स ने एक बहुत बड़े ऑफिसर को ये शिकायत लगाई है कि हम ज़्यादा बदतमीजी और रूड रवैया जो है ना, बदतमीजी वाला रवैया, वो वज़ीर आला का बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसके बाद एक पैगाम पहुंचाया गया वज़ीर आला को कि तुसी जो कहना मैनू कह लो, यानी जो बात करनी है वो मुझसे कर लें, डायरेक्ट आप ऑफिसर्स के साथ डील मत करें, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ऑफिसर्स ने जो है, कुछ ऑफिसर्स ने, मैं नाम आपको नहीं बता सकता, बेचारों के नाम सीगा राज में रखने पड़ेंगे वरना उठा के उनको कहीं दूर दराज इलाके में फेंक देंगे। वो कह रहे हैं जी रवैया बहुत रूड है और बड़ी बदतमीजी वाला है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने शिकायत लगाई है। अब देखते हैं इसका क्या बनता है। तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।